events of fertilization, at the end of which we had said that fertilization जब हो जाता है तो fertilization मतलब fusion of gametes, जिसके end में हमें zygote मिल जाता है. There will be initially meiotic division 2 which will take place, which will result into formation of a haploid ovum and a polar body. Now this haploid ovum will be having the female pronucleus which will fuse with the male pronucleus and result into the cell which is a diploid zygote. Now this zygote which has formed in the ampulla isthmus junction is further going to undergo a series of rapid mitotic divisions. मतलब जो zygote बना है, अब ये zygote काफी जल्दी काफी तेजी से डिवाइड होते जाएगा और ये जब डिवाइड होता है तो इन डिविजन्स को हम अलग नाम देते हैं जिसे कहा जाता है क्लीवेज डिविजन्स. क्लीवेज डिविजन्स और माइटोसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है. सो यहाँ पे क्लीवेज डिविजन्स होने पर when this continues, cleavage divisions continue होते हैं, it results into formation of the blastula. It results into formation of the blastula, which is the first step of the embryonic development. तो आज हम पढ़ने वाले हैं embryonic development के stages. पर embryonic development के stages हम तभी समझ सकेंगे जब हम सबसे पहले division की बात करें. किसका division? zygote का division. तो यहाँ पे जो diploid zygote है, that is going to undergo the process of cleavage division. So here first of all we need to mention cleavage division. So what is cleavage? Cleavage is the rapid mitotic divisions of the zygote that results in the formation of blastula. That results in the formation of the blastula. So cleavage is nothing but rapid mitotic divisions of the zygote, and this will result into जब zygote फटाफट divide होता जाता है तो it will be forming a mass of cells and that will be referred as nothing but the blastula. उसे क्या कहा जाता है? blastula और blastocyst, right? तो blastula formation होने वाला है. तो सबसे पहले fertilization होने के बाद after about few hours, nearly about 30 hours के बाद पहला division start हो जाता है और ये पहला division होने पर दो cells बनते हैं जिसे कहा जाता है blastomeres. Okay, so the zygote undergoes the first division which nearly takes place about 30 hours of fertilization. Fertilization के 30 hours बाद पहला division होगा and that results in the formation of the two cells which are known as blastomeres. क्योंकि एक डिवीजन होगा तो दो सेल्स फॉर्म होंगे, जो दो सेल्स बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स. अब दो सेल्स बन जाने के बाद इमीडिएटली आफ्टर 40 मतलब फर्टिलाइजेशन के 40 आवर्स बाद आफ्टर अबाउट 40 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के 40 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होगा. देयर विल बी सेकेंड डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ द 4 सेल्स. ये 4 सेल्स को भी अभी भी क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स. तो देखिए क्लीवेज मतलब क्या कि जाइगोट को डिवाइड होते रहना है जब तक ब्लास्टुला बन जाए, तो उसे क्लीवेज डिवीजन कहते हैं. पर क्लीवेज डिवीजन के लिए सबसे पहले जाइगोट जो है वो पहला डिवीजन करेगा कब? फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे हो जाए उसके बाद. तो पहला डिवीजन करेगा तो 2 सेल्स
बने हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, राइट। अब 40 आवर्स हो गए फर्टिलाइजेशन को, तो अब वापस एक दूसरा डिवीजन होगा। ये दूसरा डिवीजन जो हुआ है उसमें हमें 4 सेल्स बन गए हैं, ये भी अभी भी क्या है, ब्लास्टोमियर्स ही हैं। द थर्ड डिवीजन takes place around 3 days of fertilization। 3 days of fertilization होने पर थर्ड डिवीजन होता है, and that is going to result into 8 cell condition। That will result into 8 cell condition। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है बाहर जोना पेल्यूसिडा, एंड ऑन द इनर साइड there is the zygote, राइट। तो ये है zygote, और zygote का न्यूक्लियस ये है जोना पेल्यूसिडा। ये यहाँ पे हमने छोटी सी गैप इसीलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे पोलर बॉडी है जो अब थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगी। तो अब ये zygote जो है, दिस इज नाउ गोइंग टू अंडरगो द फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन होने पर जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट ही रहता है, जोना पेल्यूसिडा is going to remain as it is, and the cytoplasm of the zygote is going to divide into 2 cells, right। और ये जो 2 सेल्स बने, ये दोनों क्या है, ब्लास्टोमियर्स है। अब ये हो जाने के बाद अब नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट डिवीजन। तो नेक्स्ट डिवीजन पे भी हमारे पास जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है, और जोना पेल्यूसिडा जो है that remains intact, but here there will be formation of the 4 cell condition, जो भी अभी क्या है, ब्लास्टोमियर्स ही है। The 4 cells will be further continuing to divide. So here there will be formation of the 8 cell condition, और 8 cell condition से lastly there will be formation of the 16 cell condition। और ये 8 और 16 cell condition जो है, और ये जो बनेगा, this will be known as the morula। So morula formation is going to occur on the 4th day of fertilization। fertilization के 4th day पे morula formation will occur, which is 8 to 16 cell condition, 8 to 16 cell condition, and it will appear as a solid mass of cells। It will appear as a solid mass of cells। देखिए, एक zygote है, zygote जो है उसमें पहला डिवीजन हुआ, तो पहले डिवीजन के बाद 2 सेल्स बने ब्लास्टोमियर। ये कितने टाइम में हुआ, 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब 30 आवर्स के बाद सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन 40 आवर्स के बाद होता है, तो वहां पे 4 सेल्स बने। फिर थर्ड डिवीजन होता है जो अबाउट 3 दिन के बाद होता है, फर्टिलाइजेशन होने के 3 दिन के बाद थर्ड डिवीजन स्टार्ट होता है, और उससे बनते हैं 8 सेल एंड देन 16 सेल कंडीशन। जब ये 16 सेल कंडीशन बनता है, नाउ इट हैज रीच्ड टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूट्रस। तीनों दिन तक सिर्फ ये अभी भी फेलोपियन ट्यूब में था। On the fourth day of fertilization, this is now going to reach till the uterus। तो ये जो morula है वो 16 cell solid mass of ball इसकी तरह दिखेगा, mass of cells की तरह दिखेगा, and this morula formation will now change into formation of the blastula। morula में से बनता है blastula। अभी भी जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो
इंडिविजुअल सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स ही कहते हैं। तो अंदर जो सेल्स हैं वो ब्लास्टोमियर्स हैं, ज़ोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है और अब धीरे धीरे ये ज़ोना पेल्यूसिडा जो है इट स्टार्ट्स गेटिंग degenerated, it starts getting broken down. Till this time zona pellucida was intact and जो divide हो रहा था वो cytoplasm था zygote का, it keeps on dividing. Such divisions are the cleavage divisions. यहाँ पे morula मतलब mulberry, it appears like a small mulberry, इसलिए इसको morula नाम दिया गया है। अब morula से change होके बनेगा blastula. So let's see blastula formation. So in the embryonic development, first there will be the cleavage divisions that are going to occur. The cleavage divisions will result into formation of the blastula. But before blastula, there will be 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16 cell conditions, which are the cells are known as blastomeres, whereas the 8 or 16 cell condition was the morula. Now this morula has grown to the maximum and it is now going to reach to the uterus, and therefore there will be formation of the next stage, which is called the blastocyst formation. तो जब 64 सेल कंडीशन बन जाती है, क्योंकि 16 सेल तो ऑलरेडी बन चुके हैं, दे आर फर्दर गोइंग टू डिवाइड टू 32 सेल्स एंड देन 64 सेल्स। तो ये जो 64 सेल कंडीशन है दैट विल बी ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ टू फॉर्म 2 लेयर्स, an outer layer and an inner mass of the cells, leaving a small cavity aside, and this structure which will be formed is known as the blastocyst. So first of all, the 64 cell condition will get organized, forming an outer layer, and inner cell mass, leaving a small fluid filled cavity, and this fluid filled cavity is known as the blastocell. fluid filled cavity को क्या कहा जाता है? blastocell. तो अब जो 64 सेल कंडीशन है इसमें क्या होगा कि ये बाहर के सेल्स हैं, मैंने कहा कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द 2 लेयर्स। तो एक जो लेयर है वो बाहर के सेल्स का लेयर है और दूसरा जो लेयर है दैट इज गोइंग टू बी द सेल्स व्हिच आर अटैचिंग टू वन साइड ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर, एंड दिस मास ऑफ सेल्स इज नोन एज इनर सेल मास। जो अंदर के सेल्स है उसे क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। अब ये जो दिख रहा है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज द ब्लास्टोसेल, और बाहर का जो सिंगल लेयर है सेल्स का दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और अदर वर्ड फॉर इट इज ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म क्या हुआ है कि 16 सेल्स से 32 और 32 से 64 सेल्स बन चुके हैं। अब ये जो 64 सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इनटू 2 लेयर्स, एक बनेगा आउटर लेयर और एक बनेगा इनर सेल मास। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है और इनर जो मास है सेल्स का, दिस इनर सेल मास इज नोन टू बी द प्रीकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो। इनर सेल मास is known as precursor of the embryo. It is considered to be the precursor of embryo. मतलब inner cell mass will be giving rise to the embryo. मतलब जो embryo बनने वाला है वो inner cell mass में से बनता है, जबकि trophoblast जो है that is going to give rise to the extra
extra embryonic structures like chorion and amnion. Trophoblast will give rise to extra embryonic structures like chorion and amnion. आपने शायद सुना होगा that the new young baby is actually the fetus is growing in a fluid filled bag, और उसमें जो सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है दैट इज बाउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ सेल्स एमनियन, और ये एमनियन लेयर बनता है ट्रोफोब्लास्ट में से। मतलब एम्ब्रियो जो है फिटस का जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी बाय द इनर सेल मास, और बाहर जो एडिशनल सब है कोरियन है जो प्लेसेंटा बनता है जिससे एमनियन जो फ्लूइड है दैट सराउंड्स द फिटस, ये सारी चीजें ट्रोफोब्लास्ट में से बनती है। ये जो ब्लास्टोसिल है इट इज गोइंग टू, मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो यूट्रस में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके ये न्यूट्रिएंट्स को फिल करते हैं इनटू द ब्लास्टोसिल, एंड थ्रू द ब्लास्टोसिल दे आर टेकन बाय द इनर सेल मास। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड है वो यूट्रस में से अब्सॉर्ब, यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम से अब्सॉर्ब होकर ब्लास्टोसिल में आता है, और ब्लास्टोसिल से इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द इनर सेल मास। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब जिस साइड पे इनर सेल मास अटैच हुआ है उस साइड को कहा जाएगा एनिमल पोल। सो द साइड वेयर the inner cell mass attaches, जहां पे अटैच होता है उस साइड को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड एज एनिमल पोल। इट इज नोन एज एनिमल पोल, जहां पे इनर सेल मास अटैच हुआ वो एनिमल पोल, एंड द ऑपोजिट साइड is known as an embryonic pole. It is known as an embryonic pole. Another important thing is that the trophoblast cells which are attached to the inner cell mass, क्योंकि इतने trophoblast cell inner cell mass के कांटेक्ट में है, उन cells को कहा जाता है cells of Robber. The cells of trophoblast, the cells of trophoblast which are closest to inner cell mass, that are close to the inner cell mass, उन cells को कहा जाता है cells of Robber. They are known as cells of Robber. Okay, so this will be known as the cells of Robber. So embryonic development में हमने क्लीवेज डिवीजन पढ़ा और फिर हमने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की बात की है। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो है उसमें दो लेयर्स आएंगे, बाहर का लेयर ट्रोफोब्लास्ट, अंदर के सेल्स को इनर सेल मास कहा जाता है और कैविटी को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। Trophoblast के cells they will give rise to the extra embryonic structures like chorion and amnion, whereas inner cell mass will be giving rise to the embryo. Another thing is that trophoblast cells जो है the one which are closest to inner cell mass they will be forming the another type of cell जिसे कहते हैं cells of Robber. जो साइड पे इनर सेल मास अटैच हुआ है उस साइड को कहा जाता है एनिमल पोल, और उसकी ऑपोजिट जो साइड है इसे कहा जाता है एन एम्ब्रियोनिक पोल। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट इम्प्लांटेशन के लिए इतना जरूरी है दैट इम्प्लांटेशन इज गोइंग टू अकर ऑन 7th to 10th day of fertilization. फर्टिलाइजेशन होने के यूजुअली 7 या 8 डेज कहते हैं, तो 7 डेज होने पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इम्प्लांटेशन किसका होता है? तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस। So that is the next step that
that we have to discuss, and we will be discussing the process of implantation. How does it take place in our next lecture?